Hello everyone, welcome again. In this video, I'm going to give you the solution of exercise part question and answer of chapter number 14, Introduction to Electric Circuit. So, students, open your book and notebook and start writing. आप लोग टेबल पे मोबाइल सेट कर लीजिए, अपनी कॉपी निकालिए और जैसे जैसे मैम बोलती जा रही है वैसे वैसे आप लोग वर्क करते जाइए मैम के साथ साथ में. Okay, students, Science 6th Standard, Chapter 14, Question and Answer. Answer each in one or two sentences. सबसे पहले हम कौन सा पार्ट करेंगे? आंसर ईच इन वन और टू सेंटेंसेस का पार्ट करेंगे. सो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन योर कॉपी. Write down the question number first. What kind of a cell are used in a torch and laptops? This question is easy. सो स्टूडेंट्स, आप सभी में जिन्होंने अभी तक एक्सप्लेनेशन की वीडियो क्लास नहीं देखी है वो सारे बच्चे एक्सप्लेनेशन की वीडियो क्लास देख लेंगे. आप लोग को पूरी चीज़ें समझ में आनी चाहिए. और अगर आगे अभी स्कूल खुलता है तो आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखिए. स्कूल खुलने पे आपकी कॉपी चेक होगी. तो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट काइंड ऑफ अ सेल आर यूज्ड इन टॉर्च एंड लैपटॉप्स? मैम जैसे जैसे बोलती जा रही है आप लोग वैसे वैसे अपना वर्क कंप्लीट करते जाइए. आंसर नंबर फर्स्ट, टॉर्च में प्राइमरी सेल यूज होता है और लैपटॉप में सेकेंडरी सेल. लिख लीजिए आंसर. कंप्लीट योर वर्क विद द करेक्ट स्पेलिंग स्टूडेंट्स. What kind of cell are used in torch? Primary cell are used in torch and secondary cell are used in laptop. Now write down the next question. Question number 2. थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आप लोगों को लिखने का स्क्रीन पे देख के. नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. नेम द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2. नेम द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. राइट डाउन द आंसर नंबर 2 स्टूडेंट्स. आपके स्क्रीन पे है आंसर नंबर 2 आ गया. क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के? आंसर इज component of electric circuit are cell, bulb, switch and connecting wires. Complete your answer with the correct spelling students. आप लोग वर्क कैसे करोगे? अपनी टेबल पे सामने मोबाइल सेट करोगे और कॉपी लेके साथ में ही 20 मिनट्स के अंदर आप लोग छोटे छोटे आंसर्स है मैम लिखने का टाइम भी दे रही हैं कंप्लीट कर लेंगे सभी विद द करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है आपको. Now, after this, write down the next question. Question number 3. Question number 3. What do you mean by a closed circuit? Closed circuit से आप क्या समझते हैं? Write down the question number 3 and answer number 3 both. आपके स्क्रीन पे है. What do you mean by a closed circuit? Answer is closed circuit is consist of a cell, a bulb, connecting wires and switch that is in the on position. Such a circuit is called closed circuit. Complete your answer with the correct spelling. Closed circuit is consist of cell, bulb, connecting wire, switch that is in the on position.
Such circuit is called closed circuit. Now write down the question number 5. 4 लिखिए. What are insulator? Now write down the question number 4. What are insulator? आंसर आपके स्क्रीन पे है. Now write down the answer number 4. Some material do not allow an electric current to flow through them. They are called insulator. For example, mica, glass, wood, pure water, etc. Complete your answer with the correct spelling. Now next question. Question number 5. Define an electric device. Write down the answer number 5 in your copy with the correct spelling. Define an electric device. An electric cell is a device which can convert chemical energy into electrical energy. It has two terminals, one is positive and other is negative. Write down the answer number 5. Complete your answer with the correct spelling. इसके पहले का एक्सरसाइज वाला वीडियो मैम ने प्रीवियस क्लास में अपलोड किया था, वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए जिन बच्चों का नहीं हुआ है अभी तक. और ये चैप्टर पूरा आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. आंसर ईच इन 1 or 2 पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, यहाँ पे ओ कर लीजिए, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विद अ वेल लेबल्ड सर्किट डायग्राम. तो पहले इसके बारे में लिख लीजिए, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा आप लोग. राइट डाउन द आंसर नंबर 1. आंसर नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस that gives light when electricity passes through it. Which encloses a thin coiled metal wire made up of tungsten metal. The filament of the bulb glows when electricity flows through it. Complete your answer with the correct spelling. टेन सेकेंड्स और दे रही हूँ, आप लोग फटाफट कंप्लीट कर लीजिए. पेज नंबर 126 में आपका डायग्राम दिया हुआ है, टॉर्च बल्ब. इसका डायग्राम बनाएंगे आप लोग सभी अपनी कॉपी के प्लेन साइड पे बनाएंगे, जो हिस्सा प्लेन होता है वहाँ पे. ठीक है, लाइन वाली साइड पे आंसर लिख लेंगे और प्लेन वाली साइड पे ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग. बल्ब में क्या होता है, ग्लास कवर है ये, फिलामेंट, टर्मिनल, मेटल कैसिंग एंड टर्मिनल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं. ये आपका आंसर नंबर 1 जो आपको कॉपी में करना है, और इसके
आपकी कॉपी में जो प्लेन वाला साइड है वहाँ पे आप लोग डायग्राम बना लेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब का, और इस साइड पे आप ये आंसर लिख लेंगे जो आपके स्क्रीन पे शो किया है। अभी मैम ने आपको करवा दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टॉर्च विथ नीटली लेबल्ड डायग्राम। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टॉर्च आपके बुक में दिया हुआ है, मैम ने लास्ट क्लास में करवाया था। जिन भी बच्चों ने नहीं किया वो फिर से स्ट्रक्चर बना लेंगे, लेकिन जिन भी बच्चों ने स्ट्रक्चर बना रखा है वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है वो फिर से बना लेंगे, जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर नहीं बनाया वो बना लेंगे, और जिसने बनाया है हुआ है वो स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What is an electric shock? List a few safety measures to prevent an electric shock. Now write down the answer number 3. An electric shock is a condition in which the electricity of high magnitude pass through the human body. Safety measures to prevent electric shock. Point number first, safety measure का point number first. Write down the point number first of safety measures. Never replace light bulb when it is switched on. Now point number 2, never touch electric switches or gadgets when your body is wet. Complete your answer with the correct spelling, students. आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, फटाफट आंसर कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। Now write down the question number 4. Distinguish between. Question number 4. Distinguish between. फर्स्ट है अ बल्ब एंड टॉर्च। तो यहाँ पे आपके आंसर में बल्ब और टॉर्च के बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है। पहले मैम ने बल्ब का लिखवाया है, फिर टॉर्च का, ठीक है। द बल्ब हैज़ अ फिलामेंट, इट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, एंड अ टॉर्च हैज़ सेल दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। ये एक डिफरेंस हो गया बल्ब और टॉर्च के बीच का। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। Now after this, next difference. Now second लिख लीजिए, difference between cell and battery. Write down the difference between cell and battery. A cell is a most common source of electricity. A battery is a group of cells combined together. Right? Both points, students. Now write down the third part. Differentiate between open and closed circuit.
आपके स्क्रीन पे है ओपन एंड क्लोज सर्किट का डेफिनेशन। आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे यस मैम डन, माई कॉपी इज या माई वर्क इज कंप्लीटेड। नाउ राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। पहले मैम ने यहाँ पे क्लोज सर्किट का डेफिनेशन लिखवाया है। अ क्लोज सर्किट कंसिस्ट ऑफ cell, a bulb, connecting wires, switches that is in the on position. क्लोज सर्किट में स्विच ऑन पोजीशन में रहेगी and a open circuit consists of a cell, a bulb, connecting wires and a switch that is in off position. Complete your work with the correct spelling. Now come to the next part, conductor and insulator. Differentiate between conductor and insulator. आपके स्क्रीन पे है ये आंसर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। कंडक्टर, कंडक्टर इज अ मटेरियल that allows electric current to pass through it. एग्जाम्पल होगा इसका metals. An insulator is a material that does not allow electricity to pass through it. Simple. Example is wood, plastic. They all are insulator. Complete your answer with the correct spelling. After this, write down the next question. Question number 5. Mention the requirements of an electric circuit in brief. So, what are the requirements of electric circuit? Write down the question number 5. Mention the requirements of an electric circuit. In brief, write down the answer number 5. आपके स्क्रीन पे है। A closed path which the electric current flows is called an electric circuit. It has various electrical components. A cell or a battery, a switch, a bulb, and connecting wires. Complete your answer with the correct spelling. After this, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है पार्ट एच, वो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैम अभी आपको टिक करवा दे रही है। अब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे हम डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पे। सो आपकी बुक में यहाँ पे दिया है डायग्रामेटिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ अ सर्किट शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, पेज नंबर 127।
ये दिया है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और ये पूरा का पूरा सर्किट। तो ये डायग्राम आप लोग इस क्वेश्चन के साथ अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। और ये प्लेन साइड पे करेंगे, जस्ट लाइक कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किया है उसके बगल वाले पन्ने खाली होंगे, वहाँ पे आप लोग कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सिंबल यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सेम पेज में पेज नंबर 127 है, यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं। सेल का सिंबल दिया है, बल्ब का, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बैटरी। ये सारे सिंबल्स आप अपने प्लेन वाले साइड पे बनाएंगे। और जिन बच्चों ने बना लिया है ठीक है, और जिसने नहीं बनाया है वो ये सारे सिंबल फिर बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जिन बच्चों ने सिंबल्स बना लिए हैं वो लिख देंगे आंसर नंबर 2 उस पर। सो स्टूडेंट्स, आप अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करिए विद द करेक्ट स्पेलिंग। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।